Dear student, today we will take class 3, subject EVS, chapter 1, things around us. In this chapter we study about living things and non-living things, characteristics of non-living things, how living things move, grow, feel, take food, breathe and reproduce, and properties of non-living things. Now start the chapter. The world in which we live is very beautiful. We see many things around us in our daily life. They may be natural or man-made, living or non-living. It means every day we see many things around us like plant, animal, water, books, bag, vehicles and many more things. All these things that we see around us make the environment. So, what is environment? Environment includes all the things around us like air, water, plants, TV, smartphone, all also cat, dog, car, hills, mountain, etc. In environment, natural things, human made things, living things and non-living things all are present. All the things around us are mainly divided into two groups, living things and non-living things. Now start the first topic, living and non-living things. There are many differences between living and non-living things. Living things have life, they need air, water and food for their growth. They can reproduce. Plants, animal and human beings are living things. It means some things around us can breathe, grow, feel, need food and also can move on their own kind and have babies of their own kind are called living things like a boy, a girl, a bird and a tree are living things. And things that have life are called living things. Just example plants, animal, birds, etc. Means ऐसे थिंग्स जो सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं मतलब बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, फील कर सकते हैं, पेन फील कर सकते हैं, कोल्ड फील कर सकते हैं, हॉट फील कर सकते हैं, जिन्हें फूड की ज़रूरत होती है और जो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड जिसका खुद का बेबीज़ होता है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स, trees, etc. are living things. Next, many things around us can grow. They do not need air, water and food. They cannot reproduce. These things are called non-living things. They do not have life like the sun, the moon, the mountains and all human-made objects like pen, book and pencil are non-living things. It means things that do not breathe, grow, feel, need food or water, move on their own or have babies are called non-living things like a chair, a table, a fan and a book are non-living things. And also things that do not have life are called non-living things. Also sun, moon, mountain, hills are non-living things. It means ऐसी थिंग्स जो सांस नहीं ले सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, जिनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है, वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं खुद से और जिनकी बेबीज़ नहीं हो सकते हैं, उस ऐसी थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं लाइक चेयर, टेबल, फैन आर नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल्सो सन, मून, माउंटेन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. We have learned that living things have life. Now let us see what can living things do. Next topic is characteristics of living things. Living things need foods. All living things need food to stay alive. Food provides energy to them. Plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Animal gets their food from plants or other animals. They depend directly or indirectly on plants for their food. It means when we sick and ill, we feel weak. What makes us we feel fit and healthy again? Good healthy foods need us for feel healthy. Like that all living things need food to get energy, to grow and to stay alive. Different living things eat different kinds of animal in the wild have to go find their food and their own.
If we have animal in the farm, we find food for them like cow, buffalo and horses eat grass, oil cake and ambon, and goats and sheep eat grass and also other plants. And chicken feed on the farm, they eat grain. There are animals eat only grass and plants. Animals like cow, goat, sheep, buffalo, horses eat only plants, and other animals that eat plants like deer, elephant, rabbits, butterfly, also plants eating animals. And some animals hunt other animal and eat as food. Animal like lion, tiger are strong, can hunt deer, buffalo, and also there are small hunter like foxes that can hunt small animal like chicken, rabbit, etc. Some animal eat plants and some animal eat fleshes of other animals. Those animal eat plants called herbivorous, and those animal eat fleshes of other animals called carnivorous. And those animals are human beings eat plants and other animal fleshes called omnivorous. Did you know some animal eat other dead animal? The vulture and hyena eat dead animals. All living things eat food for energy and stay alive. For food, human beings and animals are depend directly or indirectly, but only plants can prepare their own foods with help us air, water, sunlight, etc. मीन्स लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है. फूड उन्हें हेल्दी रखता है, एनर्जी देता है. और डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग डिफरेंट टाइप्स के फूड्स ईट करते हैं, खाते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, बट कुछ एनिमल्स अदर एनिमल्स के फ्लेशेस खाते हैं. लाइक काऊ, गोट, डियर आर ईट प्लांट्स एंड लॉयन, टाइगर, फॉक्सेस आर ईट फ्लेशेस ऑफ अदर एनिमल्स. लेकिन प्लांट ही ऐसा एक लिविंग थिंग्स है जो अपना फूड खुद बनाता है. ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. बट एक प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना फूड खुद बनाता है. और प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो. All living things grow by using the energy which they get from food. They grow and change their shape and size. A tiny seed grows into a baby plant. After some time, it grows into a big plant or a tree. The egg of a butterfly changes into a caterpillar and then to an adult butterfly. A human baby grows into a young boy or girl and become an adult man or a woman. It means लिविंग थिंग्स के पास ग्रो करने के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. और जब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं तो इनके शेप और साइज में चेंजिंग आती है. लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स हाउ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. अ टेनी सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट्स. आफ्टर सम टाइम्स इट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट्स और अ ट्री. इट मीन्स a tiny seed present inside a baby plants. It contains things need to grow into a new plants with sufficient amount of air, water and warmth. After some days, seed germinated and small root and stem grow into a seed. Unroot parts are grow downward and stem parts are grow upward. We see after some days baby plants are grow above the ground, and after few days baby plants convert into adult plants that's called tree. They bear fruits, flower, leaf and trunk. Means एक छोटे से सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट्स प्रेजेंट होता है. उन्हें एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए एयर, वाटर और वार्मथ की ज़रूरत होती है. और जब भी इन्हें ये सारी चीज़ एक सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है तो ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं. ये पहले स्मॉल प्लांट्स में ग्रो करते हैं, फिर ये एडल्ट में ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम्स वी लुक चेंजेस इनटू बिग प्लांट्स कॉल्ड ट्री. इससे पता चलता है कि प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स एंड दे कैन ग्रो. नेक्स्ट, द एग ऑफ अ बटरफ्लाई चेंजेस इनटू अ कैटरपिलर एंड देन टू एन एडल्ट बटरफ्लाई. इट मीन्स बटरफ्लाई का जो एग होता है वो सबसे पहले चेंज होता है कैटरपिलर में, फिर उसके बाद ये एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है.
इससे पता चलता है कि बटरफ्लाई के अंदर ग्रो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई बटरफ्लाई इज अ लिविंग थिंग्स. Next, a human baby grow into a young boy or girl and become an adult man or woman. It means एक ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है वो सबसे पहले ग्रो करता है एक छोटे यंग बॉय और गर्ल्स में सबसे पहले ग्रो करता है, फिर एडल्ट में ग्रो करता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है मैन और वुमेन में. इससे पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स के पास ग्रो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग आल्सो आर लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. All plants and animals breathe in the air. Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen, whereas human beings and animals breathe in oxygen and give out carbon dioxide. Plants breathe thought stomata. Animal breathe thought their nose, lung, gill, skin or air holes. Animal like cat, dog, tiger, lion breathe thought their lungs. Insect like cockroach, mosquitoes and grasshoppers breathe their air holes. Fish breathe their gills. It means ऐसे थिंग्स जिनके पास ब्रीदिंग करने के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ. दैट्स व्हाई दे कॉल लिविंग थिंग्स. प्लांट्स जो होता है वो ब्रीदिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और वही ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ह्यूमन बींग्स हुए, एनिमल्स हुए, ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. इट मीन्स प्लांट्स से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है. और प्लांट्स जो होता है वो उसके लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. वो स्टोमेटा के थ्रू ही ब्रीदिंग करता है. Stomata or small opening present mostly on the lower surface of a leaf. They help plants to breathe. It means लीफ के लोअर सरफेस पर, नीचे की सतह पर छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और यही स्टोमेटा प्लांट्स को ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं. एंड कई सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं नोज, लंग, गिल, स्किन और एयर होल से. सम एनिमल लाइक कैट, डॉग, टाइगर, लॉयन ये ब्रीथ करते हैं अपने लंग से. उनका जो लंग्स होता है वो हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए. एंड सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो एंड ग्रासहॉपर ब्रीथ थॉट एयर होल्स. ये इंसेक्ट्स जो होते हैं कॉकरोच, मॉस्किटो ये ब्रीथिंग करते हैं एयर होल से. इनके अंदर एक एयर होल्स प्रेजेंट होता है जो ब्रीदिंग करने में इनको हेल्प करता है. एंड फिश ब्रीथ थॉट गिल्स. फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. व्हेन वी prick our hand with a small pin, we feel the pin and move our horn away quickly. When we touch the leaves of touch me not plants, it quickly close its leaves. When we touch an ice cube and fingers feel cold, the sunflower turns into face towards the sun. The lotus close petals at night. It means ऐसे थिंग्स जिनके पास फीलिंग्स होती है, फील करने के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. जब आपके हाथों पे कोई स्मॉल पिन प्रिक करता है, चुभाता है, तो हमें पेन फील होता है, दर्द होता है, तो हम तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं. ये जो फीलिंग्स होती है पेन करने की, हॉट, कोल्ड, ये सब फील करने के लिए सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. बहुत से ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स होती है. लाइक दैट व्हेन वी टच द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स, इट क्विकली क्लोज इट लीव्स. इट मीन्स ऐसे ही प्लांट्स में भी फील करने की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही एक प्लांट्स है टच मी नॉट, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में छुई मुई कहते हैं. इन प्लांट्स के लीव्स को जैसे ही हम टच करते हैं उनके लीव क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं. दैट्स वाई प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स. ऐसे ही जब हम अब किसी आइस क्यूब को हम टच करते हैं अपने फिंगर से तो हमें कोल्ड वाली फीलिंग आती है, ठंड वाली फीलिंग आती है. ऐसे ही प्लांट्स में सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट्स है जब सन उगता है, वेकअप होता है,
तो सनफ्लावर अपना फेस सन की तरफ कर लेता है। इससे पता चलता है प्लांट्स के अंदर फीलिंग होती है। ऐसे ही लोटस का जो पेटल्स होता है, पत्तियाँ होती हैं, वो नाइट के टाइम क्या होती है, क्लोज हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर फील करने और रिएक्ट करने के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। All living things reproduce young ones like themselves. It is called reproductions. Human beings and animals like cats, dog, cow, buffalo, etc. give birth to their young ones. Bird, fish, snakes, and frog lay eggs, and the young ones hatches out of the eggs. Plants produce seeds from which new plants arise. It means ऐसी थिंग्स जिनके पास रिप्रोड्यूस करने के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे एक यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, काउ, बफेलो एक्सेट्रा, ये ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपने ही जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड बर्ड्स, फिश, स्नैक्स एंड फ्रॉग ले एग्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बर्ड, फिश, स्नैक्स, और इनके एग से इनके यंग वंस बाहर आते हैं। और लाइक प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। और प्लांट्स का जो सीड्स होता है उससे न्यू प्लांट्स बाहर आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स का जो सीड होता है उसमें एक न्यू प्लांट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। जैसे ही उनसे सफिशिएंट अमाउंट में एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलता है, वो एक न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। इससे पता चलता है जिस भी थिंग्स के पास रिप्रोड्यूस करने के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स कैन मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो movement. Animals move from place to place in search of food and shelter, while plants do not move from one place to another. They are fixed to the ground. Some plants show little movement. Man and animals like cat, dog, and elephants walk on or run. Birds fly, fish swim, snake crawl, frog hop or jump. It means ऐसे थिंग्स जिनके पास वन प्लेस से अनदर प्लेस मूवमेंट करने के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, खुद से वो मूव कर सकते हैं, ऐसे थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं किसी न किसी वर्क के लिए। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने फूड को सर्चिंग के लिए मूव करते हैं, सर्चिंग के लिए मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स अपने शेल्टर के लिए मूव करते हैं। You know, plants do not move one place to another place. They are fixed to the ground. Plants ऐसा लिविंग थिंग्स है जो वन प्लेस से अनदर प्लेस अपनी खुद से वो मूव नहीं कर सकता है, वो एक ही जगह फिक्स रहता है। बट प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, अपनी फिक्स प्लेस पे ही रहकर मूव करते हैं। लाइक लीफ, ब्रांचेज ऐसे हैं, जब हवा चलती है तो इनके कुछ पार्ट्स, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। Man and animal like cat, dog and elephant walk or run. कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकती हैं। फिश जो होते हैं वो स्विम करते हैं, तैरती हैं। स्नैक्स क्रॉल करता है, रेंगता है। फ्रॉग क्या करता है, हॉप और जंप करता है, कूदता है। इससे पता चलता है कि मैन, एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं इनके मूवमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ स्विम कर सकते हैं, कुछ क्रॉल कर सकते हैं, कुछ जंप कर सकते हैं। बट सबके अंदर मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दे ऑल आर लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स. Non-living things have no life. They cannot move on their own. They do not need air to breathe in or food to eat. They can neither feel nor reproduce. Things like table, chair, rocks, toy, stones, stars, and the moon are non-living things. It means
ऐसे थिंग्स जिनके पास किसी तरह की कोई लाइफ नहीं होती है, ना ही वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ना ही उनको किसी तरह की भी फूड की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें एयर की ज़रूरत होती है, ना ही वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, टॉय, स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. Non-living things are of two types, man-made and natural non-living things. Let us study man-made and natural non-living things. All non-living things are man-made or natural. Things which are made by man are called man-made non-living things. It means जितने भी non-living things हैं या तो वो man-made होते हैं या वो natural होते हैं. और ऐसी थिंग्स जो मैन के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, उन्हें हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स कुछ ऐसे थिंग्स जो मैन और ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होते हैं. लाइक सन, वाटर, मून, एयर, माउंटेन, हिल्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स, फर्नीचर, हाउसेज, क्लॉथ्स, व्हीकल्स आर man-made non-living things. Now discuss horse. A car show movement. Is it a living thing or not? Give reason for your answer. You know very well car is a non-living thing because they do not breathe and they cannot grow, feel, and they cannot need food or water. They cannot move on their own and they never reproduce. That's why car is a non-living thing. Now chapter is completed. Thank you.